everyone, welcome to Panisha Tutor. Today we are here with another session of current affairs in which we'll be covering last week of March's current affairs. So let's begin with our today's session. My first segment covers important dates and events. So first date is 23rd March, on which we celebrate World Meteorological Day. On 24th March, it is celebrated as World TB Day, but instead of the theme which recognizes invest to end in deep tuberculosis and save lives, there is a percentage increase in tuberculosis which we'll notify in our coming slides. Another day on 24th March is observed as International Day for Achievers. People who have achieved something, this day celebrates their achievements. On 25th March is celebrated every year as International Day of Unborn Child. Children who have been unborn and have died while their mothers were pregnant or in any other circumstances, this day celebrates those children. On 26th March, it is celebrated as Purple Day of Epilepsy. Now, what is epilepsy? Epilepsy is basically a neurological disorder in which basically there is lack of awareness and brain starts functioning abnormally. And why only purple is referred? Because purple is a color of solitude. Internationally, epilepsy organizes this Purple Day because purple is significant of solitude, or internationally purple color is recognized for the same. Then 15th Earth Hour was also observed on this day this year. Earth Hour is basically for conserving the climate. People switch off the lights from 8:30 to 9:30 p.m. in their respective standard time zones in every country, and this is basically done to shape our futures, and the theme for the same was also Shape of Future. 27th March is observed as 60th World Theatre Day. Recently, your Oscar Awards, 94th Oscar Awards were also organized on the same day to commemorate this World Theatre Day. We'll be covering the specifications of our Oscar Awards in our coming slides. On 31st March is observed every year, which is today's date, as International Day for Drug Checking and National Tatters Day. What is tatters? Tatters is basically all the varieties of potatoes that are available, which give you different kind of fibers, vitamins, minerals, and to celebrate that, National Tatters Day is celebrated every year on 31st March. So let's begin with national news. The first thing comes is Narasingpatai Nagaswaram has recently got a geographical indication tag. This is basically a wind instrument which you can see in this picture. This cylindrical shaped body and this bell shaped bottom together comprises of this wind instrument. This is geographical to the state of Tamil Nadu and it has recently got geographical indication tag. अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो ये 2.5 फीट है अपनी लेंथ में. बेसिकली ये अच्छा ट्री जो है उससे बनाया जाता है और इसकी वुड कम से कम 100 साल ओल्ड जो है उससे चुनी जाती है. इसकी जो रीड्स हैं वो नैनल, जो कि एक लोकली प्रोड्यूस प्लांट है, उससे बनाई जाती है. So this is how this instrument, which has got a geographical indication tag recently, is being made. The next segment covers your BrahMos supersonic cruise missile. Recently, इंडिया ने BrahMos supersonic cruise missile जो है वो टेस्ट की है. ये BrahMos बेसिकली बनी कहाँ से है? BrahMos दो शब्दों से बनी है. Brahm comes from Brahmaputra river of India, which is endemic to only two states that are Arunachal Pradesh and Assam, and Mos comes from Moskva river of Russia. ये दोनों कंट्रीज ने मिलकर इस जो मिसाइल है, सिस्टम है, उसको लॉन्च किया है. इंडिया की DRDO ऑर्गेनाइजेशन एंड इनकी NPOM ने मिलकर इस सुपरसोनिक मिसाइल को जो है, ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट मिसाइल्स में से एक मानी जाती है, उसे डेवलप किया है. रिसेंटली इसे टेस्ट किया गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, जो कि आपकी इंडियन पेनिनसुला की बात करूं तो ऑन ईस्टर्न साइड जो है वो वहां लोकेटेड है. इसकी रेंज 290 किलोमीटर्स की और स्पीड 2.8 मैक्स की है. ये बेसिकली बहुत फास्ट चलती है. ये ऐसी मिसाइल है जो कि आप सबमरीन, सरफेस वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट्स, लैंड और सरफेस के अगेंस्ट और सी बेस्ड टारगेट्स के अगेंस्ट जो है इसे लॉन्च कर सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मिसाइल सिस्टम्स दैट वी हैव इन द वर्ल्ड. तो इसका जो फर्स्ट एयर लॉन्च था वो 2017 में
वाया दिस Su-30 MKI लाइटर एयरक्राफ्ट के द्वारा टेस्ट किया गया था। द नेक्स्ट सेगमेंट कवर्स कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। केरला एकमात्र ऐसी स्टेट है जिसने अपने बजट में कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है उसको अडॉप्ट करने का प्रण जो है लिया है रिसेंटली। ये बेसिकली बेटर सॉइल हेल्थ को जो है प्रमोट करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है। अब सबसे पहली समझने वाली बात यह है कि कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती क्या है। कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में बेसिकली हम ऐसी प्रैक्टिसेस को जन्म देते हैं जिसमें कम से कम कार्बन एमिशंस जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा पाए। इनको हम सॉइल हेल्थ में कैसे फैसिलिटेट करेंगे? बाय यूजिंग टेक्निक्स लाइक integrated farming methods, by crop rotation methods, by fustigation and precision farming methods। इससे जो हमारी सॉइल है वो प्रॉपरली इरिगेट हो पाएगी, प्लस ये जो हैपहैजर्ड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की यूसेज है उसको बहुत ही मिनिमाइज कर दिया जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल हेल्थ रिलेटेड मैकेनिज्म्स व्हिच हैज बीन अडॉप्टेड बाय योर केरला स्टेट। अब ये 2 फेजेस में कंडक्ट होगी इन केरला। फर्स्ट फेज जो है उसमें 13 फार्म्स को कवर किया जाएगा और जो सेकंड फेज है उसके अंदर 140 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं उनको सर्व किया जाएगा। द नेक्स्ट कम्स इज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का रिसेंटली 2nd एडिशन जो है लॉन्च किया गया है और अगेन गुजरात हैज बिकम द स्टेट विच हैज द मैक्सिमम एक्सपोर्ट इंडिसेस। अब एक्सपोर्ट जो गुजरात स्टेट ने किया है दैट इज 20.83 इन योर फाइनेंशियल ईयर 2020-2021। इकोनॉमिक सर्वे में हमने ऑलरेडी 75% जो है अपना टारगेट सेट किया था जिसे हम क्रॉस कर चुके हैं और हमने $400 बिलियन का बिजनेस जो है अपने एक्सपोर्ट्स के थ्रू कर लिया है। जो टॉप परफॉर्मर्स है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली वो है आपके गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्रा एंड तेलंगाना। और अगर मैं बॉटम परफॉर्मेंस की बात करूं जिन्होंने आपके एक्सपोर्ट इंडेक्स में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया है उसमें लक्षद्वीप, अरुणाचल, मिजोरम, लद्दाख और मेघालय जैसी प्लेसेस आती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ये 2 कमीशंस मिलके इन्होंने इस इंडेक्स को बनाया। दैट इज वन इज नीति आयोग जो कि आपकी थिंक टैंक है। इसके प्रेजेंटली जो चेयरमैन है दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और वाइस चेयरमैन इसके राजीव कुमार है। सीईओ इसके अमिताभ कांत हैं। ये ऐसा थिंक टैंक है जो बेसिकली आपके गवर्नेंस जो है उनको मेजर करता है। इन दोनों ने मिलकर इस इंडेक्स को जो है वो प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट इज ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। रिसेंटली जामनगर गुजरात में WHO की मदद से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है उन दोनों ने मिलकर एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है जामनगर गुजरात में इस्टेब्लिश किया है। अब ट्रेडिशनल मेडिसिन से बेसिकली मतलब ये है कि इसके अंदर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन, हर्बल मिक्सचर्स और डिफरेंट टाइप की जो मॉडर्न मेडिसिन जो हैं डिफरेंट आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने के जो इंडिसेस हैं उन्हें इंप्लीमेंट किया जाएगा। सस्टेनेबल हेल्थ मेजर्स लिए जाएंगे और एनवायरनमेंट को सस्टेन करने वाली मेडिसिन जो हैं उनकी प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाएगा। So this initiative is one of the initiatives by your WHO and your Ministry of Ayush जो कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है। इसके अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हैं उनकी प्रोडक्शन और हर्बल मिक्सचर्स की प्रोडक्शन जो है जो एंशिएंट टाइम से आपके इंडिया में चलती आ रही है उनको जो है वो बूस्ट किया जाएगा। तो इसका जो ऑन साइट लॉन्च है वो 21 अप्रैल 2022 को डिजाइन किया गया है। So we are looking forward to this traditional medicine policy by our country. Next comes is first ever steel slag road. ये हजीरा सूरत जो कि आपका फिर से गुजरात स्टेट का पार्ट है वहां पर पहली बार बनाई गई है। हजीरा एक छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया है आपके सूरत में, वहां पर पहली बार एक स्टील स्लैग से रोड जो है वो बिल्ड की गई है। अब स्टील स्लैग क्या होता है? Basically steel slag is left out waste which has come out of your iron and steel industry। तो इनको ऐसा माना जाता है कि इनकी जो कॉम्पोजिशन है 5 से 10% की पोटेंशियलिटी रखता है कि ये कंस्ट्रक्शन वर्क्स में यूज की जा सकती है। तो ये फर्स्ट एवर जो कि आपकी सूरत जो कि आपकी डायमंड सिटी है इंडिया की, वहां पे पहली बार इस रोड को जो है वो बनाया गया है। ये एक एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट है
और इस रोड की थिकनेस जो है वो 30% तक कम करने की बात की गई है। इसमें प्रोसेस्ड स्टील जो है, ऐसा माना गया है कि जो स्टील स्लैग है उसके अंदर जो प्रोसेसिंग यूज की जाती है उसका मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है। ये कहीं ना कहीं आपके एनवायरनमेंट को सफिशिएंटली कंजर्व करने में जो है मदद करेगा। ये इनिशिएटिव है आपका वेस्ट टू वेल्थ और क्लीन इंडिया कैंपेन का। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टील स्लैग रोड which is first built in Hazira, Gujarat. Next comes is Sujalam 2.0 campaign. ये रिसेंटली वर्ल्ड वाटर डे पे बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इंट्रोड्यूस किया है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के जो मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ने इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है। अब इस सुजलाम 2.0 कैंपेन का एजेंडा क्या है? इस कैंपेन का एजेंडा बेसिकली ग्रे वाटर की मैनेजमेंट करना है। अब सवाल ये उठता है, व्हाट इज ग्रे वाटर मैनेजमेंट? ग्रे वाटर मैनेजमेंट बेसिकली आपके वाटर जो है ना वो 3 टाइप का होता है। वन इज योर क्लीन वाटर। क्लीन वाटर जो आपको स्प्रिंग्स में, वेल्स में, पॉन्ड्स में, द फ्रेश वाटर सोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू यू। नेक्स्ट इज ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर आपको टॉयलेट्स में से या फिर जहां पे आपने मैक्सिमम हार्श केमिकल्स यूज किए हैं, जिसको आप दोबारा से यूज नहीं कर सकते, जिसकी कंजर्वेशन मुश्किल है, जिसको रीयूजेबल बनाना मुश्किल है, दैट कम्स इन कैटेगरी ऑफ ब्लैक वाटर। अब ग्रे वाटर कैटेगरी में कौन सा वाटर आता है? ये वो वाटर है जो कि आप सिंक्स में, शावर्स में, बेदिंग में, लॉन्ड्री में और इन सब जगहों पर यूज करते हो। इनके अंदर बेसिकली आपको हार्श केमिकल्स यूज करने की जरूरत नहीं होती और इजीली ये रिसाइक्लेबल वाटर है, रीयूजेबल वाटर है। इनको मैनेज करने के अलग अलग जो डिसीजंस हैं वो हम इजीली कैरी आउट कर सकते हैं। तो वर्ल्ड वाटर डे पे सुजलम 2.0 कैंपेन ने यही कहा कि हमें ग्रे वाटर जो है इजीली मैनेज करने की जो टेक्निक्स हैं उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और अपने एनवायरनमेंट को कंजर्वेशन की ओर जो है वो बढ़ाना चाहिए। तो 22 मार्च को जब आपका वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है तब इस सुजलम कैंपेन को जो है वो लॉन्च किया गया है। इस बार का वर्ल्ड वाटर डे का थीम था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो बेसिकली इसके ऊपर कंजर्वेशन जो है इसका मेन फोकस रहा है। नेक्स्ट कम्स इज विंग्स इंडिया 2022। फर्स्ट टाइम एवर इन इंडियन इकोनॉमी विंग्स इंडिया 2022 जो कि आपकी एशिया का लार्जेस्ट एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा कंडक्ट किया हुआ द लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट जो है वो रिसेंटली तेलंगाना इंडिया में हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश शेयर कैपिटल है, वहां पे कंडक्ट किया गया। अब इस फोरम का बेसिकली मकसद ये है कि अलग अलग बायर्स और सेलर्स को और अलग अलग स्टेक होल्डर्स को जो कि आपकी एविएशन इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हैं उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना और उन्हें अलग अलग मेजर्स जो हैं वो या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनसे मीट करवाना है। अब ये एशिया का लार्जेस्ट इवेंट है, लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे एविएशन के जो लोग हैं, CSIR, CIRL, अलग अलग एविएशन इंडस्ट्रीज के लोग इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते हैं और दे शेयर देयर एविएशन बिजनेस पॉलिसीज और ये रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए अलग अलग पैरामीटर्स पे ये बात करते हैं। इसके अंदर 3 अथॉरिटीज इन्वॉल्व हैं, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, देन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड FICCI, दैट इज फेडरेशन फॉर इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये जो विंग है ये 24 से 27 मार्च 2022 में कंडक्ट की गई है इन योर हैदराबाद सिटी इन तेलंगाना। नेक्स्ट इज हिस्टोरिक बॉर्डर डिस्प्यूट। अब हिस्टोरिक बॉर्डर डिस्प्यूट किसके बीच में? जो आपकी 7 सिस्टर्स हैं उनमें से 2 स्टेट्स ऐसी हैं, दैट इज असम एंड मेघालय, जिनके अंदर एज ओल्ड 5 ईयर डिकेड ओल्ड जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो चलता आ रहा है। बेसिकली ये जो आपका मेघालय स्टेट है ना, ये असम में से 1972 में से निकला था और तभी से ये डिस्प्यूट जो है ऑलमोस्ट चलता आ रहा है। ये बॉर्डर को लेके, एथनिसिटी इश्यूज को लेके, लोगों की विल को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस को लेके, अलग अलग रीजंस की वजह से इन दोनों स्टेट्स में डिस्प्यूट चलता आ रहा है। तो अभी ये जो एज ओल्ड डिस्प्यूट है इसे रिजॉल्व कर दिया गया है। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा एंड मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनराड संगमा ने कल ही एक अग्रीमेंट आपस में साइन किया है जिसमें उन्होंने एज ओल्ड ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व करने की बात की है। अब आउट ऑफ टोटल 12 प्लेसेस इन्होंने 6 प्लेसेस ऐसी चुनी है जिनके अंदर 36 विलेजेस हैं जहां पे ये बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए रेडी है। वो 6 प्लेसेस के नाम आर जस्ट एज डिस्प्लेड ऑन योर स्लाइड, दैट इज हाहिम, जिजांग, ताराबरी, बोकलापरा, खानापरा, प्लिंगटा एंड राता चेरा। तो इन 6 प्लेसेस पे इन्होंने बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उसे रिजॉल्व कर लिया है।
टोटल जो डिस्प्यूटेड एरिया था इन 6 प्लेसेस का दैट वाज 36.79 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से ये बात की गई है कि 18.51 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो असम को दे दिया जाएगा और 18.28 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो मेघालय स्टेट को दे दिया जाएगा. दिस इज हाउ दे हैव डिस्प्यूटेड. ये फर्स्ट फेज होगा आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए. जो सेकंड फेज है बेसिकली वो डीमार्केशन के ऊपर बेस्ड है, जो कि आपकी बाउंड्रीज को डीमार्केट करेगा, जो कि आपके सर्वे ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाएगा एंड लेटर ऑन वो उसे पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा. सो दिस इज हाउ दिस एज ओल्ड हिस्टोरिक जो आपका डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है बिटवीन एनी 2 स्टेट्स इन आवर कंट्री हैज बीन रिजॉल्व्ड रिसेंटली. नाउ नेक्स्ट कम्स इज एक्सरसाइज प्रस्थान. एक्सरसाइज प्रस्थान बेसिकली 2 एजेंसीज के बीच में कंडक्ट की गई है. वन इज वेस्टर्न नेवल कमांड एंड द अदर इज ONGC. ONGC स्टैंड्स फॉर ऑयल एंड नेशनल गैस कॉर्पोरेशन. वेस्टर्न नेवल कमांड के हेडक्वार्टर्स आर इन मुंबई एंड ONGC के हेडक्वार्टर्स आर इन न्यू दिल्ली. तो इन्होंने रिसेंटली एक्सरसाइज प्रस्थान जो है, जो कि ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया जो कि मुंबई के वेस्ट कोस्ट पे है, वहां पर कंडक्ट की है. ये बेसिकली ये असेस करने के लिए जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उनकी कितनी रेडीनेस है, कितनी अवेलेबिलिटी है कि वो आने वाले खतरों से डील करने की क्षमता रखते हैं या नहीं रखते हैं. खतरों से अगर बात करूं तो दे टॉक अबाउट टेररिस्ट इंट्रूजन, दे टॉक अबाउट बॉम्ब एक्सप्लोजन्स, दे टॉक अबाउट सर्च एंड रेस्क्यू, मेजर फायर एंड ऑयल स्पिल्स जो कि इनके एरिया में हैपन हो, या फिर मास इवैक्यूएशन जैसी एक्सरसाइज करने में ये क्षमता रखते हैं या नहीं रखते हैं. तो उन पैरामीटर्स को असेस करने के लिए ये मरीन स्टेक होल्डर्स जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, दैट इज इंडियन एयरफोर्स, ऑयल एंड नेशनल गैस कॉर्पोरेशन, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, फिशरीज डिपार्टमेंट, मरीन पुलिस, इन सभी की असेसमेंट को जज करने के लिए इस एक्सरसाइज को जो है वो कंडक्ट किया गया है. नेक्स्ट कम्स इज नॉइज पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड. मुरादाबाद यूपी एक ऐसी सिटी बन चुकी है जो कि जहां पर मैक्सिमम नॉइज पोल्यूशन जो है वो एक्सपीरियंस हुआ है. यस, इन द वर्ल्ड्स मोस्ट नॉइज पोल्यूटेड सिटीज मुरादाबाद यूपी का रैंक 2nd नंबर पे है. यहां पर 114 डेसिबल की नॉइज जो है वो रिकॉर्ड की गई है. नॉर्मल हेयरिंग टेंडेंसी इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, बट यहाँ पर मैक्सिमम नॉइज जो है वो ऑब्जर्व की गई है बाय योर एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट जिसका टाइटल है नॉइज ब्लेजेस एंड मिसमैचेस, जो कि आपकी UNEP द्वारा पब्लिश्ड है. इसके द्वारा ये कहना है कि मुरादाबाद यूपी इकलौती ऐसी सिटी है जो 2nd रैंक पर आती है इन टर्म्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन. 1st नंबर पे जो सिटी आती है इन टर्म्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन दैट इज इन बांग्लादेश, जिसका नाम है ढाका. यहाँ पर 119 डेसिबल्स की जो नॉइज है वो रिकॉर्ड की गई. और 3rd नंबर पे आती है आपकी इस्लामाबाद, जो कि आपकी पाकिस्तान की कैपिटल है. अगर मैं वर्ल्ड की सारी सिटीज की बात करूं तो इस रिपोर्ट का ये कहना है कि कम से कम 3 इंडियन सिटीज ऐसी हैं जो कि टॉप 15 में आती हैं. One is definitely your Moradabad from UP, and the second is Asanol from West Bengal, and the third one is also Kolkata, which is West Bengal's capital. ये तीनों cities top 15 में आती हैं. और अगर मैं वर्ल्ड की क्वाइटेस्ट सिटीज की बात करूं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, तो जॉर्डन की एरबिड सिटी जो है, जहां पे 60 डेसिबल की नॉइज जो है वो मैक्सिमम रिकॉर्ड हुई है. दिस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट साइलेंट सिटी. उसके बाद इट इज फॉलोड बाय लियोन इन फ्रांस, देन मैड्रिड इन स्पेन, देन स्टॉकहोम इन स्वीडन and Belgrade in Serbia. So this is all the crux of the report which is published by Annual Frontier Report 2022. Next is Cold Response 2022. अब Cold Response 2022 basically क्या है? ये एक डिफेंस प्रोग्राम है जो कि NATO and its allied countries द्वारा जो है वो चलाया गया है. नॉर्वे इसका सेंटर ऑफ ऑपरेशन है. ये मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को इन्वॉल्व करती है इन योर नॉर्वे रीजन. ऐसा माना गया है कि 30,000 ट्रूप्स, 220 एयरक्राफ्ट, 50 वेसल्स, 27 नेशन के मिलकर इस एक्सरसाइज को जो है वो कंडक्ट करेंगे. अब ये एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर लाइमलाइट में आई है. ये एक्सरसाइज को पहले ही जन्म दे दिया गया था, बट अब इसकी सिग्निफिकेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है बिकॉज वेस्ट और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज. That's why this exercise is in news recently. इसका फेज जो है 14 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में जो है वो कंडक्ट किया जाएगा. इसको 3 फेजेस में कंडक्ट किया जाएगा. नेवल ऑपरेशंस इन द अटलांटिक फेज 1, एयर हैवी ऑपरेशंस इन फेज 2 एंड amphibious लैंडिंग एंड लैंड बैटल ड्रिल्स इन फेज 3. So this is about your Cold Response 2022.
नेक्स्ट कम्स इज एक्सरसाइज 10 लिंक। अब 10 लिंक थर्ड एडिशन एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और उज्बेकिस्तान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये ऐसी एक्सरसाइज है जो दोनों कंट्रीज की कोऑपरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और इंटरऑपरेबिलिटी को जो है वो बिल्ड करेगी। अब इस एक्सरसाइज को इंडियन रेजिमेंट में ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उज्बेकिस्तान के साइड से नॉर्थ वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट जो है इस एक्सरसाइज को पेश करेगी। जो इसका सेकेंड एडिशन हुआ था दैट वाज हेल्ड इन रानीखेत इन उत्तराखंड। दिस इज द थर्ड एडिशन विच इज हैपनिंग राइट नाउ। तो इस एक्सरसाइज को 24 आवर लॉन्ग वैलिडेशन एक्सरसाइज कहा गया है, जिसके अंदर चैलेंजेस लिए जाएंगे सिमुलेटेड ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए। तो ये जो एक्सरसाइज है दोनों कंट्रीज की आर्मीज को जो है वो स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स पर लाने की एक कोशिश है। नेक्स्ट इज 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। दिस हैज बीन द वर्स्ट न्यूज दैट आवर कंट्री हैज गॉट टिल डेट। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जो कैपिटल सिटी है दिल्ली, उसने हमारी कंट्री का नाम रोशन किया है। कैसे? नंबर 1 रैंक हासिल करके। यस, दिल्ली की एयर क्वालिटी इज द वर्स्ट इन द होल यूनिवर्स, इन द होल वर्ल्ड। दिल्ली एकमात्र ऐसी कैपिटल सिटी बन चुकी है जहां की एयर क्वालिटी सबसे पुअर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दिल्ली की एयर क्वालिटी PM2.5 इज बेसिकली पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का मतलब होता है कि अगर पार्टिकुलेट मैटर का साइज लेस देन 2.5 mm हो तो दैट कैन लीड टू नॉन ब्रीदेबल डिजीजेस, एस्थमा, रेस्पिरेटरी डिजीजेस एंड मेनी अदर डिजीजेस जो हमारी एयर ब्रीदिंग कैपेसिटीज को और भी ज्यादा स्लो कर देता है। तो दिस इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट विच हैज पोर्ड टू आवर मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशंस टू लोअर एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो अगर वर्ल्ड की टॉप 5 सिटीज की बात करूं तो फर्स्ट इज दिल्ली, सेकेंड इज ढाका इन बांग्लादेश। ढाका जहां टॉप कर रहा था इन नॉइज पोल्यूशन, यहां सेकेंड नंबर पर आ रहा है। देन वी हैव छाद, देन वी हैव दुशबेन इन तजिकिस्तान एंड ऑन 5th नंबर वी हैव मुस्कैत इन ओमान। ये जो रिपोर्ट है दिस इज पब्लिश्ड बाय स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ Air। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की है अभी। और इस ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि इंडिया इज ऑन 5th प्लेस इन टर्म्स ऑफ कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ पुअर एयर क्वालिटी। इन टर्म्स ऑफ कंट्री 5th नंबर पे इंडिया आ रही है। द नेक्स्ट इज राइनो बॉन्ड। ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बॉन्ड जो है वो रिलीज किया गया है। इस बॉन्ड को आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड भी बोलते हैं। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको अगर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड बोलते हैं तो इसको राइनो बॉन्ड ही क्यों बोला गया? बिकॉज ये राइनोज को कंजर्व करने के लिए एक पहला स्टेप जो है वो डिजिटली लिया गया है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड्स। साउथ अफ्रीका एकमात्र ऐसी कंट्री बनी है जहां पर बॉन्ड्स जो हैं राइनो की कंजर्वेशन के लिए निकाले जा रहे हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, $150 million for a period of 5 years for sustainable development of the rhino population. This bond has been released. मतलब 2027 तक इस बॉन्ड को जो है वो मैच्योरिटी मिल जाएगी। ये एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए और राइनो पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए है। अगर मैं आपको बताऊं तो राइनोज जो हैं इनके ऊपर काफी सारी स्पीशीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं। पहला रीजन तो यही है। सेकेंड रीजन ये है कि IUCN में ये जो स्पीशीज है दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। IUCN इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। उस लिस्ट के अनुसार राइनोज की जो पॉपुलेशन है दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो इन्हें कंजर्व करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मेजर्स लेने होंगे। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मेजर है जिसके थ्रू आप बॉन्ड्स इश्यू करोगे फॉर कंजर्विंग दिस पर्टिकुलर स्पीशीज। नेक्स्ट इज मोस्ट पॉपुलर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हमारे लिए गर्व की बात है दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अगेन टॉप्ड दिस लिस्ट। ये बेसिकली ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग्स द्वारा पब्लिश्ड एक लिस्ट है जिसके अनुसार ये कहा गया है कि नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। इनकी जो रेटिंग्स हैं वो 71% अप्रूव्ड हैं। और इस लिस्ट के अनुसार जो आपके यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, ही हैज बीन रैंक्ड द लोएस्ट इन द सेम लिस्ट। इनको अप्रूवल रेटिंग सिर्फ और सिर्फ 26% मिली है। जस्टिन ट्रूडेयो की बात करूं जो कि आपके कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज रैंक्ड ऑन द 6th नंबर with approval rating of only 43%. So this is all about the world's most popular list in which our Prime Minister has again made the country proud.
द नेक्स्ट इज 94th ऑस्कर अवार्ड्स, जिन्हें आप अकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जानते हो, ऑन योर वर्ल्ड थिएटर डे, दैट इज 60th वर्ल्ड थिएटर डे, विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 27th मार्च. इसको कोमेमोरेट करने के लिए योर ऑस्कर्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन कैलिफोर्निया इन यूएसए ऑन 27th मार्च. इन्हें आप अकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जानते हो. इन अवार्ड्स को अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज, दैट इज एम्पस ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे हर साल प्रेजेंट करती है. इस साल इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले जो तीनों होस्ट थी, दे वो वुमेन, which is a one of its kind differentiation from the previous sessions that were held. अब Oscars इतने significant क्यों हैं? क्योंकि they count the cinematic contributions which have been made every year and to celebrate the achievements of the cinema in the previous year which has gone by. तो इसके limelights में रहे हैं बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, जो कि अपने स्लैप की वजह से has been in a controversial news. Then the best actress has been bagged by Jessica Chastain. The best director for the same is Jane Campion for The Power of Dog. So these were some of the limelights that were backed by your Oscars. अब नजर डालते हैं कुछ important appointments पे. तो सबसे पहली नजर डालते हैं जो 5 states में आपके recently elections conduct हुए थे, उनके अंदर कौन कौन चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट्स जो हैं वो सामने आए हैं. तो वो जो 5 states थी, they were मणिपुर में CM कैंडिडेट इज N बीरेन सिंह. अब ये सेकेंड टाइम के लिए जो है आपके चीफ मिनिस्टर बने हैं. If I talk about Goa state, Pramod Sawant has been elected as the chief minister और ये भी सेकेंड टाइम के लिए आपके चीफ मिनिस्टर बने हैं. पंजाब के सीएम इज भगवंत मान. अब आप हैज बीन मेजरली विक्टोरियस इन दिस स्टेट और ये आपकी कैंडिडेट की पहली सरकार है जो पंजाब में आई है. देन इज न्यू सीएम ऑफ उत्तराखंड, दिस इज पुष्कर सिंह धामी. ये 12वें चीफ मिनिस्टर बने हैं आपके उत्तराखंड स्टेट के. उत्तर प्रदेश की बात करूं तो योगी आदित्यनाथ दोबारा आए हैं फॉर सेकेंड टर्म. तो दैट मीन्स मणिपुर, गोवा एंड उत्तर प्रदेश, ये तीनों स्टेट्स ऐसी हैं जिनके अंदर जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट्स हैं वो री इलेक्ट हुए हैं. आगे बात करते हैं 11th डायरेक्टर ऑफ ILO. ILO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. इसके जो 11th डायरेक्टर हैं वो पहली बार कोई अफ्रीकन को मिला है ये, दैट इज गिलबर्ट एफ होंगबो. अब इनकी बात करूं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, इसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसमें 187 मेंबर कंट्रीज जो हैं वो शामिल हैं. नेक्स्ट इज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ टर्कमेनिस्तान. न्यू प्रेसिडेंट ऑफ टर्कमेनिस्तान इज सरदार बर्दिमुहादेव मदोव. इफ आई टॉक अबाउट CEO ऑफ TCS स्टैंड्स फॉर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. इनके नए CEO अपॉइंट हुए हैं, दैट इज राजेश गोपीनाथ. टाटास की काफी प्रोफिशिएंट ये कंपनी है. नेक्स्ट इज गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, जिसका 9th एडिशन रिसेंटली हेल्ड हुआ, दैट इज बैक्ड बाय मारियो मार्शल. मारियो मार्शल आपके चिली जो कंट्री है उसके सेंट्रल बैंक के गवर्नर है. सो दिस अवार्ड इज बैक्ड बाय मारियो मार्शल. नेक्स्ट इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ NATO. NATO स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर कम से कम 29 यूरोपियन और कुछ नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज का ये अलायंस है, इंटर मिलिट्री अलायंस है. इसमें जेंस स्टोल्टनबर्ग जो है वो 1 ईयर का इनको एक्सटेंशन मिल गया है. हिज रिटायरमेंट विल बी नाउ इन 2023. प्रेसिडेंट ऑफ BAI रिसेंटली इज बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया. असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्हीं को रिसेंटली आपके बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो बना दिया गया है. So these were some of the important appointments in this particular week. Next comes Sports Star of the Year Award. तो इंडियन ओलंपियंस जो कि नीरज चोपड़ा हैं, जिनको रिसेंटली 2020 समर ओलंपिक्स में जो कि टोक्यो में हुए थे, जहां पे उन्होंने जैवलिन में गोल्ड मेडल जीता था. सो ही हैज बैग्ड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर. और अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो मीराबाई चानू, जो कि आपकी वेट लिफ्टिंग में माहिर मानी जाती हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल हासिल किया था, उन्हें स्पोर्ट्स स्टार पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी का अवार्ड मिला है. शी हैज ऑल्सो बैग्ड BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड. सो these both sports persons have made the country definitely proud. और इस टाइम पे हिंदू ग्रुप ने एक कॉफी टेबल बुक जिसका नाम रोड टू 1000 है वो भी रिलीज किया था.
मूविंग ऑन, नेक्स्ट कम्स स्विस ओपन। स्विस ओपन को आप सुपर 300 के टाइटल के नाम से भी जानते हो। रिसेंटली पीवी संधू हैज बैग्ड दिस स्विस ओपन फॉर द सेकेंड टाइम इन्होंने ये सेम टाइटल जो है वो हासिल किया है। ये स्विस ओपन जो है 22 मार्च से लेकर 27 मार्च 2022 को कंडक्ट किया गया था। ये बेसल स्विट्जरलैंड में हुआ था। पीवी संधू ने थाईलैंड के बुसनन ओंगबैमरुंगन को जो है हराया था बाय 21-16 एंड 21-18 बाउट्स, और शी हैज मेड इंडिया प्राउड। अगर मैं वर्ल्ड रैंकिंग्स की बात करूं तो सिंधु का रैंक इज ऑन नंबर 7 इन वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। तो शी हैज डेफिनेटली मेड इंडिया प्राउड अगेन बाय विनिंग दिस टाइटल फॉर द सेकेंड टाइम। नेक्स्ट कम्स इज हु इज जिया राय। जिया राय एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है, 13 साल की हैं सिर्फ, और इन्होंने हमारी कंट्री को दोबारा से प्राउड फील करवाया है। कैसे? इन्होंने पार्क स्ट्रेट, जो आपके इंडियन पेनिनसुला और श्रीलंका को जोड़ने वाली ये जो सी रूट है, दिस इज कॉल्ड योर पार्क स्ट्रेट। इस पार्क स्ट्रेट को इन्होंने केवल 13 आवर्स 10 मिनट्स में जो है स्विम करके पार कर लिया है। तो इन्होंने जो प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर्स है भूला चौधरी, जिन्होंने 13 आवर्स 52 मिनट्स में इस पार्क स्ट्रेट को क्रॉस किया था, उन्हें हरा दिया है। एंड शी हैज बिकम द न्यू सेंसेशन ऑफ द टाउन बाय विनिंग दिस टाइटल। ये ऑटिस्टिक हैं, शी हैज प्रूव्ड दैट a disability can never stop you from achieving your goals. So really inspirational. So this is how Jia Rai is recently in news. Next comes is tap to pay for UPI, that is Unified Payments Interface. अब ये क्या है? Basically Google की जो आपकी पेमेंट एजेंसी है गूगल पे एंड योर पाइन लैब्स, इन दोनों ने इकट्ठे मिलकर एक इनिशिएटिव लिया है कि अब जो यूजर्स हैं वो अपने फोन्स को पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल पे सिर्फ टैप कर जो है पेमेंट्स को असेस कर सकते हैं और ऑथेंटिकेट कर सकते हैं उसको यूपीआई पिन के द्वारा। आप कोई भी पेमेंट जो है इन दोनों पैरामीटर्स से टैप टू पे वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। पाइन लैब्स की बात अगर मैं बात करूं तो रिलायंस रिटेल जो है इज द फर्स्ट कंपनी टू टेस्ट दिस पर्टिकुलर पेमेंट इंटरफेस। अभी तक ये जो फैसिलिटी थी ये सिर्फ कार्ड्स पर अवेलेबल थी, बट नाउ इट इज अवेलेबल ऑन फोन्स। ये पाइन लैब्स और गूगल पे जो है दोनों ने कंपाइल कर एक नई जो है एजेंसी उसको बर्थ दिया है। पाइन लैब्स की बात करूं तो इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं दैट आर इन नोएडा विच इज इन उत्तर प्रदेश, और 1998 में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फाउंड हुई थी। नेक्स्ट इज ट्यूबरक्लोसिस। रिसेंटली वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है वो मनाया गया, बट आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस वाले डे के दिन ये पाया गया कि जिस बीमारी को, जिस इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज को हम कम करना चाहते हैं, जो कि डायरेक्टली आपके लंग्स में अफेक्ट करता है, दैट हैज शोन एन इंक्रीज। कितना इंक्रीज? 19% का इंक्रीज जो है वो टीबी केसेस में पाया गया है रिसेंटली इन योर कंट्री। अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली नेशनल TB prevalence survey in India 2019 to 21 report has said TB में बेसिकली 19% जो केसेस हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। TB आपका बैक्टीरियल डिजीज है जो कि डायरेक्टली आपके लंग्स को अफेक्ट करता है, एंड इट इज इन्फेक्शियस डिजीज। जस्ट बाय स्नीजिंग और कफिंग इट कैन स्प्रेड टू द अदर पर्सन। So we need to really conserve our population. We need to really save our population, save our community from dying because of these kind of deadly diseases. So इसी के चलते ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई है। नेक्स्ट कम्स इज सोमेलियू बोबे मैगा। ये कौन है? ये रिसेंटली माली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली हैज रिसेंटली पास्ड अवे। इन्होंने 2 साल के लिए प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो हेल्ड की। इन्होंने He was also a director of intelligence services for a while. Basically, journalist थे by profession. Recently, he has died. Next obituary is seen by 35th Chief Justice of India, जिनका नाम है रमेश चंद्र लाहौटी. He has recently passed away. इन्होंने हमारी कंट्री के as 35th Chief Justice of India जो है सर्व किया था. Plus, he was also the director of Press Trust of India for a while. He has served in several high courts of the states and has been a beneficiary to our Indian economy. तो इसीलिए इनकी obituary जो है वो important बन जाती है. So that's all.
It's a wrap in our today's edition of Current Affairs. I hope you liked the contents of this video. So please don't forget to like, subscribe and share Panacea Tutor. Thank you. Thank you so much.